السلام علیکم، میں ہوں اسما بیگ۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی گئی۔ کمیشن رپورٹ میں ایس ای سی پی سمیت دیگر ریگولیٹرز بھی ذمہ دار قرار۔ مسابقتی کمیشن چینی کی قیمتیں ریگولیٹ کرنے میں ناکام رہا۔ رپورٹ کے مطابق تحقیقاتی کمیشن نے 9 شوگر ملز کا آڈٹ کیا۔ ذمہ داروں کے خلاف کیسز نیب اور ایف آئی اے کو بھجوائے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ کا مفادات کے ٹکراؤ کا قانون جلد نافذ کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکس چوری میں ملوث شوگر ملز کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ کا آٹا بحران رپورٹ پر بھی مزید تحقیقات کا فیصلہ۔ کسان سے کٹوتی کے نام کے اوپر ایک زیادتی ہے۔ کچھ ملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچی پرچی کا سسٹم ہے۔ 1 روپے کی گڑبڑی کریں اپنی چینی کی قیمت کے تعین میں تو آپ کا منافع ونڈ فال پروفٹ بنتا ہے 5.2 ارب۔ شوگر ملز نے کسانوں کو تسلسل کے ساتھ نقصان پہنچایا۔ 5 برسوں میں 88 شوگر ملز کو 29 ارب کی سبسڈی دی گئی۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کی میڈیا بریفنگ، کہا کمیشن رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت نے اومنی گروپ کو سبسڈی دے کر فائدہ پہنچایا۔ جہانگیر ترین، مونس الہی، عمر شہریار اور شریف فیملی کی ملوں میں 2 کھاتوں کے شواہد ملے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مطابق چینی 51 روپے فی کلو پڑتی ہے۔ کمیشن نے تعین کیا یہ لاگت 38 روپے ہے۔ چینی ایکسپورٹ کا ڈیٹا چیک کیا گیا تو اربوں روپے کا فرق نکلا۔ برآمدات کی مد میں 58% چینی افغانستان جاتی ہے۔ آج پاکستانی سیاست کا تاریخ ساز دن ہے۔ ہمارا مقصد غریبوں کو لوٹنے والوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی نیوز بریفنگ، کہا ایسے ایشوز سامنے آ رہے ہیں جو پہلے سامنے نہیں آتے تھے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں طے ہو گیا جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے کوئی عوام کو لوٹ نہیں سکتا۔ وہ وقت گیا جب وزیر اعظم اور کابینہ مل کر غریب دشمن اقدامات کرتے تھے۔ سخت ترین دباؤ کے باوجود کپتان آج غریب کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ وزیر اعظم کا کابینہ میں شامل مشیروں اور معاونین خصوصی کو اثاثے ظاہر کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں تمام مشیر اور معاونین خصوصی اپنے اثاثے فوری طور پر کابینہ ڈویژن میں ڈکلیئر کریں۔ ملک میں 24 گھنٹوں میں 2193 نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرین کی تعداد 48,091 ہو گئی۔ مزید 32 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1017 تک جا پہنچی۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 18,964، پنجاب میں 17,382، خیبر پختونخوا میں 6,815، بلوچستان میں 2,968، گلگت بلتستان میں 579 اور آزاد کشمیر میں 148 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ وزیر اعظم عید سادگی سے منانے کا اعلان کریں، وزیر اعلیٰ سندھ کی اپیل۔ مراد علی شاہ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ مارکیٹیں کھلنے سے خدشہ ہے کہ 14 روز بعد کیسز بڑھیں گے۔ این ایف سی کی تشکیل غیر قانونی ہے۔ وزیر اعظم کو خط لکھا ہے نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ لسانی رنگ دیا گیا، کراچی سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ جہاں کیسز زیادہ ہوں گے وہاں اقدامات بھی زیادہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا رواں سال فرنٹ لائن ورکرز کے نام کرنے کا اعلان۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال۔ بازاروں اور سڑکوں پر رش بڑھ گیا۔ پنجاب میں شاپنگ مالز رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ بلوچستان میں 2 جون تک سمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع۔ دکانداروں کا رات 9 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازاروں میں خریداروں کا رش۔
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोरोना ज्यादा फैलने का खतरा है। कोरोना से नौजवान तबका ज्यादा मुतासिर हो रहा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत चाहमानी ने खबरदार कर दिया। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन में 2 जून तक तौसी की है। लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील ताजरों से हमदर्दी में किया। बलूचिस्तान में कोरोना 30% अजला में नहीं फैला। रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम एक ही दिन में जवाब दे गया। वफाकी वजीर रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम में खराबी पर टिकट्स रिजर्वेशन ऑफिस जुज़वी खोलने का ऐलान। शेख रशीद का कहना है रावलपिंडी, लाहौर, कराची में रिजर्वेशन दफातर को कल से जुज़वी तौर पर खोला जाएगा। हर गाड़ी की 60% तक बुकिंग की जाएगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर रोहित हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ईद उल फितर 24 मई को होगी। रोहित हिलाल कमेटी पीर को करना चाहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा ईद 24 मई को क्यों बनती है। ये भी बताऊंगा कि रोहित हिलाल कमेटी क्यों पीर की ईद करना चाहती है। साइंस के जदीद दौर में रोहित हिलाल कमेटी की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आज की अहम खबर यह है कि जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, उमर शहरियार और शरीफ फैमिली की शुगर मिलों में 2 खातों के शवाहिद मिले हैं। मुअव्विन खुसूसी शहजाद अकबर की न्यूज ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देकर फायदा पहुंचाया। अल अरबिया में कच्ची पर्ची का रिवाज बहुत मिला है और किसानों को 40 करोड़ रुपए कम दिए गए। अगर ये चीनी की कीमत में 1 रुपए की भी गड़बड़ करें तो इनको 5.2 अरब का यौमिया फायदा है। अफगानिस्तान को चीनी की बरामद मशकूक है और 5 बरसों में 88 शुगर मिल्स को 29 अरब की सब्सिडी दी गई। ये इंकशाफात किए गए आज शहजाद अकबर की जानिब से। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना और तजियाकार एंकर पर्सन मंसूर अली खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आमिर आपसे जानना चाहेंगे आमिर साहब के जो हकायक सामने रखे गए हैं, क्या ये सबके लिए काबिल कबूल होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, और अवाम इससे मुतमईन हो पाएगी कि उनका लूटा हुआ पैसा अब वापस उन्हें मिलेगा? वैसे जितने जज्बात आपके हैं ना, उतने ही जज्बात शहजाद अकबर के, शहबाज शरीफ और उसके बच्चों की बिल के हवाले थे। बाकी वरना उनकी आवाज बंद थी कि वो सब्सिडी किसको दे रहे थे, ओमनी ग्रुप पे थी। ये सब ज़ेबे दास्तान है, इसमें से कुछ नहीं निकलना। ये जो कहानियां कर रहे हैं, फखर इमाम ने कह दिया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, हालांकि एफआईए ने लिखी बात यही कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का होना चाहिए। अब ये क्या बैक डेट से बताएंगे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे जहां खुसरो बख्तियार और उनके भाई हाशिम वजीर खजाना पंजाब हों और कहानी यही करी जाए कि जी मैंने तो मुखालफत की थी और पैसे भी मैंने ही दे दिए। आज सरवर खान ने खुल के कैबिनेट में एक बागी वजीर का किरदार अदा किया। उसने प्राइम मिनिस्टर से कई दफा ये कहा कि आप हमें बताएं सब्सिडी देने वालों के ऊपर जुर्म क्या है। वो बार बार कहते रहे। उन्हीं के मुतालबे पे आज ये एडवाइजर्स और मुआवने खुसूसी की जो असासों की बात हुई है, जो कल परसों उन्होंने इंटरव्यू में कही थी, वो आज उन्होंने फिर दोहराई तो प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा, लेकिन वो पब्लिक करने के लिए नहीं कहा। वो कहा है कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जमा करा, ये जितने स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर हैं उनके। फिर इस रिपोर्ट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिफारिशात भेजेंगे, हम इसकी आम ट्विस्टिंग करेंगे, एससीसीपी ने ठीक नहीं किया, रेगुलेटरी इदारे, ये हमें सबको पता था। हम ये सोच रहे थे कि इस रिपोर्ट के साथ एक्शन शुरू होगा, लेकिन जब एक्शन की बात आई तो उन्होंने कहा हम मखदूम खुसरो बख्तियार को कैसे कह सकते हैं कि वजारत से हट जाए, कि जब उनका भाई अगर ये बिजनेस करते हैं तो सबके भाई और बेटे ही काम कर रहे थे, तो फिर ये कहानी करने की क्या जरूरत। फिर आप ना तो मुनस इलाही को पकड़ सकेंगे, जब सब्सिडी देना जुर्म नहीं, एफआईए कहती है ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो फिर लेना कैसे जुर्म होगा। हाँ, आइंदा के लिए सिफारिशात अच्छी हैं कि रिपोर्ट आ गई जो काफी दिन पहले एफआईए ने की थी, जो कार्टेल बना हुआ है अल्लाह करे कि उसे तोड़ सके। वरना आज ही एक मीटिंग में हफीज शेख और अब्दुल रज़ाक दाऊद ने एप्टमा की ऐसी वकालत की है कि पता नहीं वहां भी अरबों रुपए का एक नया स्कैंडल जन्म देगा कि उनको सब पैसे दिए जाएं रिबेट के नाम पे। वो अभी आएगी कहानी सामने। तो ये जिनका अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का जिक्र था कि उन्हें बुला के बयान लिया गया, उसका कोई पता ही नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर। अब हम वो तफसील से 357 सफ़े आ गए जो अभी हम पढ़ नहीं सके। जो पॉइंट्स इन्होंने बोले मैं उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें कुछ चीज़ें पहले भी बता दी गई थी। एक दो लोग जिन्होंने इसमें रिपोर्ट में काम किया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, वो यही कह रहे थे कि इसमें सिर्फ यही होगा कि मोनोपोली तोड़ी जाने की हम बात कर रहे हैं कि जो दलाल होते हैं ब्रोकर चीनी लेके, जो उन्होंने शुगर का हवाले से बताया कि शुगर मिल खुद उसको पैसे दे रही है कि तुम हमारी चीनी खरीद लो। ये मशकूक ट्रांजेक्शन्स 2-4 हैं ऐसी
असल बात ये होगी कि क्या इस सीजन में वो चीनी का जो 20 रुपए रेट किया है ऊपर, इसे ये वापस लाएंगे, चाहे वो सिंध हुकूमत ने किया हो, चाहे वो पंजाब ने दिया हो। सब्सिडी उन्होंने, सरवर खान ने नाम लेके कहा कि वजीर आला पंजाब ने सब्सिडी किस चक्कर में, मुझे बताएं कि इस रिपोर्ट में कहाँ पे जिक्र है उनका। अब ये वफाकी काबीना के आज के इजलास की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहां पे ये सवाल उठाए गए, तो जवाब तो इन्हें ही देना था। यहाँ पे ये कहानी सारी जो लिखी हुई लेके आए थे, जो अभी स्क्रीन पे भी चल रही है सारी जगह पे, कि क्या है कि जी वो पॉइंट्स हैं हमारे पास कुछ मखसूस, वो जो उन्होंने बोल दिए और 357 सफात की, बहुत अच्छा किया शहबाज गिल ने, वो रिपोर्ट पब्लिक भी कर दी है, दे भी दी है सबको। मसला तब बनेगा जब इनके कल्प्रिट पकड़े जाएंगे। ये जो 2-3 महीने की कहानी है, इससे तो कुछ नहीं होने का। इस पे स्टे भी आएंगे, इस कमीशन के ऊपर एक्शन को भी रुकवाया जाएगा, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शुगर मिल्स एसोसिएशन है, चाहे वो जहांगीर तरीन है, चाहे वो चौधरी परवेज लाई के बेटे मोनस लाई हैं, सब अपनी अपनी तरफ से अदालतों में जाएंगे जिनका जिक्र किया गया है। क्योंकि या तो एक्शन होता, एक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। जब काबीना में वजीर सवाल उठाएं और सवाल गंदुम और जवाब चना मिले, तो ये बात समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, चैनल्स पे बहस होगी, गपशप होगी, प्रोग्राम होंगे, यदि बड़ा काम किया है इस गवर्नमेंट ने, तारीख साज काम किया, लेकिन तारीख साज अरेस्ट, तारीख साज जुर्माने, वो कब आएंगे उसका कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल ठीक है, अहम चीज़ है, अहम पॉइंट आपने रेज़ किया है। मंसूर साहब, आपके ख्याल में तारीख साज दिन है, खुश होना चाहिए अवाम को कि ये रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन ये नाम तो पहले से ही मंजर-ए-आम पर आ चुके थे। जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं, इत्तेफाक करेंगे कि एक्शन नहीं हुआ, इस बात पे तशवीश भी होनी चाहिए, बनती है अवाम को। देखिए, मेरे ख्याल में शहजाद अकबर साहब ने आज बड़ी कन्वीनियंटली जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो शायद जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किए। ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने खुली हुई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश में कर देता हूँ ताकि आपको उससे अंदाजा हो जाए कि मामला कितना सीरियस है। इसका एक पॉइंट नंबर है 263, ये नोट कर लीजिएगा, 263। इसमें लिखा हुआ है, इन द रिसेंट पास्ट देयर इज अ विजिबल टेंडेंसी अपेरेंट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट which has shied away from the policy of subsidy to the sugar mills at the federal level। ये डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जनाब वो इस इशू के ऊपर जो है चल जाते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट 261 नंबर है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जनाब पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो हुकूमतों के ऊपर दबाव डालती है, और इस हुकूमत पे भी दबाव डाला गया, और उसके ऊपर दबाव इस बात का डाला गया कि जनाब हमें अपने स्टॉक्स खाली करने की तब तक आप ना कहें, हुक्म ना दें, जब तक आप सब्सिडी फाइनल नहीं कर लेते। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि चीनी की कीमत को बढ़ा दिया जाए पहले, उसके बाद हमें उसे एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी जाए, और ताकि मार्केट के अंदर भी जो है वो चीनी महंगी हो जाए। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब की जो शुगर मिल्स हैं उसके हवाले से क्लियर कट वहां पे सट्टे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि जनाब उनकी शुगर मिल भी जो है वो सट्टे में इन्वॉल्व रही है, लेकिन इसके बावजूद जहांगीर तरीन साहब के ऊपर ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई। खुसरो बख्तियार साहब को बड़े तरीके से उन्होंने ये कह के बचा लिया कि जनाब उनकी अपनी शुगर मिल थोड़ी है, उनके तो भाई की शुगर मिल है। तो जनाब हजूर, बात यह है कि जो शरीफ खानदान के खिलाफ जो पूरा केस लड़ा गया था, जब बात मरियम नवाज की और हसन हुसैन की आती थी, तो तब भी यही कहा जाता था कि जनाब असल में ताने बाने नवाज शरीफ से जाके मिलते हैं, और नवाज शरीफ को जवाब देना है इस बात का। यहाँ पे भी आपकी फैमिली का जो सबसे तगड़ा आदमी है वो खुसरो बख्तियार है, जो कि काबीना का हिस्सा है। उसके होते हुए उसकी मिलें जो है वो बैठ के फायदा उठाती रही हैं। तो जब तक यहाँ पे कोई गिरफ्तारियां नहीं होंगी, जब तक यहाँ पे इस्तीफे नहीं होंगे, तब तक इस शुगर रिपोर्ट को जो है वो आप उठा के अलमारी में बंद कर दें। और आमिर साहब सही फरमा रहे थे, इसके ऊपर 1 हफ्ता 2 हफ्ते टॉक शोज हो जाएंगे, इसके ज्यादा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और जब ऑपोजिशन के मेंबर्स की आप बात करते हैं, उनकी अभी इंक्वायरी स्टेज के अंदर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, लेकिन आप उनको ठग करके गिरफ्तार कर लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना हो। यहाँ पे रिपोर्ट आ चुकी है, इससे पहले भी रिपोर्ट आई, उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। जब पहले रिपोर्ट आई थी तो हमें कहा जाता था इंतजार कीजिए, हौसला कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।